हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं ऑल फॉर लव बाय जॉन ड्राइडन के एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल फॉर लव और द वर्ल्ड वेल लॉस्ट इज अ 1677 heroic drama by A. John Bunyan, B. John Dryden, C. Richard Steele, D. Shakespeare. So right answer is B. John Dryden. Next is it is dedicated to A. John Dryden, B. Shakespeare, C. Earl of Danby, and D. Nunn. So right answer is C. Earl of Danby. Next, it is a tragedy written in A. Heroic couplet, B. Blank verse, C. Limerick, and D. None. So right answer is B. Blank verse. इसको blank verse में लिखा गया है. Now our next question is. It was first appeared in 1677, was revived in A. 1704, B. 1700, C. 1705, and D. 1710. So right answer is A. 1704. Next, it was performed डैश टाइम्स बिटवीन 1700 एंड 800. कितनी बार जो है इसके बीच परफॉर्म किया गया है? A 121, B 122, C 123 and D 125. So right answer is C 123 times. इसको 123 times परफॉर्म किया गया है. All for Love begin with John Dryden's dedication of the play to an aristocratic patron. A. Thomas Osborne, B. Thomas Nash, C. Shakespeare and D. Muse. So right answer is A. Thomas Osborne. उन्होंने उनको डेडिकेट किया था अपना ये प्ले. Next, Dryden has invented new characters, scripted a fictional meeting between Cleopatra and A. Octavia, B. Octavia, C. Fulvia and D. None. So right answer is A. Octavia. So शेक्सपियर का जो था प्ले, उसके अंदर उनकी कोई मीटिंग नहीं होती, लेकिन इसमें ड्राइडन एक फिक्शनल मीटिंग उनके बीच में अरेंज करके दिखाई है. नाउ नेक्स्ट इज टू प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल ऑफ आइसिस आर A. Serapion and Myris, B. Serapion and Ventidus, C. Myris and Ventidus, and D. None. So right answer is A. Serapion and Myris. Next is Dryden's All for Love is a classical tragedy, B. Neoclassical tragedy, C. Ballad, and D. None. So right answer is B. Neoclassical tragedy. So एक neoclassical tragedy है जो लिखी गई है blank words में. Now next question. What is the alternative title for All for Love? A. The World of Egypt, B. The World of Love, C. The World Well Lost, and D. All. So right answer is C. The World Well Lost. इसका alternative title है. Where is All for Love set in? A. Illyria, B. Alexandria, C. Naples, and D. None. So ये जो totally based है play वो है Alexandria पर. So right answer is B. नेक्स्ट, हु वॉज एलेक्सिस? एलेक्सिस एक कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है, वो कौन है? ए. क्लियोपेट्राज लवर, बी. क्लियोपेट्रा सर्वेंट, सी. क्लियोपेट्रा इंच, एंड डी नन. सो राइट आंसर इज सी. क्लियोपेट्रा इंच. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन हुज बर्थडे डज द एक्शन ऑफ ऑल फॉर लव टेक प्लेस ऑन? किस इसकी जो कहानी की शुरुआत है वो किसके बर्थडे से शुरू होती है? ए. क्लियोपेट्रा, बी. लैपिडस, सी. एंटनी, एंड डी. एलेक्सिस. सो राइट आंसर इज सी. एंटनी. नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज वेंटिडस कंपेयर एंटनी विद? उसने वेंटिडस ने एंटनी किससे कंपेयर किया? ए. लायन, बी. टाइगर, सी. मंकी, एंड डी. डॉग. सो राइट आंसर इज बी. टाइगर. नेक्स्ट, अ mortal for he was to us and Egypt. These are the word of Alexis, who is mortal of for Egypt. A. Cleopatra, B. Antony, C. Caesar, and D. Octavia. So right answer is C. Caesar. So Alexis ने इस प्ले में जो है किसको मॉर्टल बताया? सीजर को मॉर्टल बताया, मीन्स अमर बताया है. नाउ नेक्स्ट इज Oh, that faint word respect, how distant it, who hate the modest word respect? A. Fulvia, B. Octavia, C. Cleopatra, and D. Alexander. So ये लाइन कही गई है C. Cleopatra के द्वारा. Next, how many years Antony and Cleopatra had been loved for? कितने साल तक जो है उनका फेयर चला? A. 7 year, B. 9 year, C. 10 year, and D. 12. So right answer is A. 7 years. Next is jealousy. Jealous is the polished glass held to the lips when life is in doubt. Who says? किसके द्वारा कही गई है? A. Alexis, B. Cleopatra, C. Antony, and D. None. So right answer is A. Alexis. ये Alexis के द्वारा जो है ये लाइन बोली गई है इस प्ले में All for Love में ये बोला गया है. Now next question is what are Charmian and Iris? A. Friends of Cleopatra, B. Minister of Cleopatra, C. Maids of Cleopatra, and D. None. So right answer is C. Maids of Cleopatra. Cleopatra की maids थी दोनों. Next, दिस वन किस मोर वर्थ देन ऑल, हु सेज? ये लाइन किसके द्वारा कही गई है? ए. क्लियोपेट्रा, बी. एंटनी, सी. लैपिडस, एंड डी. नन. सो राइट आंसर इज सी. लैपिडस. ये लैपिडस के द्वारा बोली गई है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेंटिडस इज एंटनीज. ये एंटनीज का क्या था? ए. मिनिस्टर, बी. फ्रेंड, सी. जनरल, एंड डी. नन. सो राइट आंसर इज सी. जनरल. ये जनरल था. द एक्शन ऑफ द प्ले कन्फाइड इन टू. जो ऑल फॉर लव है ये इसका पूरा एक्शन जो है कितने दिनों का है? ए. 1 day, बी. 2 days, सी. 3 days, एंड डी. 4 days. सो राइट आंसर इज बी. 2 days. ये टोटल 2 दिनों का एक्शन है, मतलब पूरी स्टोरी जो है 2 दिन में जो है खत्म हो जाती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु डिस्क्राइब ऑल फॉर लव एज अ ट्रैश और ड्रामेटिक अटेम्प्ट, किसने इसको ट्रैश बताया? ए हैजलिट, बी ब्लेक, सी शैले एंड डी वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर इज ए हैजलिट। नेक्स्ट, वेयर वाज एंटनी डिफीटेड एट? ए अलेक्जेंड्रिया, बी बेंटीन, सी एक्टम एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी एक्टम। उसको एक्टम में जो है हार का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, हु इन्फॉर्म एंटनी दैट क्लियोपेट्रा हैज स्टैब्ड हरसेल्फ? तो वो अपनी एंटनी को रोकने के लिए एंटनी से नाराज हो जाता है, तो वो अपनी झूठी खबर फैलाती है कि मैं जो है कि सुसाइड कर रही हूँ, और वो किसको है जो है झूठी खबर लेकर एंटनी के पास भेजती है? ए लेपिडस, बी आयरिस, सी एलेक्सिस एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी एलेक्सिस। वो एलेक्सिस को भेज देती है, जिसके बाद एंटनी खुद भी सुसाइड कमिट कर लेता है। नेक्स्ट, हाउ डिड क्लियोपेट्रा डाई? लेकिन वो मरती कैसे है? जब उसे एंटनी उसकी वजह से मर जाता है, तो फिर जो उसको पता था कि अब उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि जो ऑक्टेवियस था वो क्या करता, उसको जंजीरें पहनाकर उसके पूरे कपड़े उतार कर पूरे शहर में घुमाता। तो इस बेइज्जती से बचने के लिए वो क्या करती है? ए बाय ड्रॉनिंग, बी स्नेक पॉइजन, सी बाय हैंगिंग एंड डी नन। सो राइट आंसर इज बी बाय स्नेक पॉइजन। तो वो जो है अब सांप अपने ऊपर लगा लेते हैं, जो उसको काटते हैं, जिनके जहर से वो धीरे धीरे करके मर जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि मतलब बेइज्जत होने से बेटर है कि वो सुसाइड कमिट कर ले। नाउ नेक्स्ट, बाय होम द टाइटल इज सजेस्टेड? ये टाइटल जो है ऑल फॉर लव द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, ये किसके द्वारा जो है सजेस्ट किया गया था? ए लेडी कैसलमैन, बी लेडी वैलेंटीन, सी डचेस एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए लेडी कैसलमैन। नेक्स्ट, इन द प्ले ओपनिंग सी व्हाई डू रोमन सोल्जर फॉल्ट एंटनी? ए, he is overly ambitious and plans to divide the Roman state by waging war against Caesar. B, his cowardice in the battle has resulted in the loss of valuable sea trade route to Pompey. C, his excessive fondness for Cleopatra threatened to compromise his duty as a Roman statesman. And D, an irresponsible drinker, Antony often treated his subordinate disrespectful. So right answer is his excessive fondness for Cleopatra threatened to compromise his duty as a Roman statesman। कि उसकी फॉन्डनेस इतनी ज़्यादा थी क्लियोपेट्रा को लेकर कि वो अपनी ड्यूटीज़ पर बहुत कम ध्यान दे रहा था। तो यहीं से जो है कहानी की हमारी स्टार्टिंग जो है वो दिखाई गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what do Charmian and Iris do in order to foresee their future? A, consult a crystal ball, B, summon a soothsayer who read their palms, and C, read tea leaves, and D, visit a witch. So right answer is B, summon a soothsayer who read their palms. So उन्होंने सूतसार को बुलाया जो उनकी हाथ की रेखाओं को पढ़ सके। नेक्स्ट, हाउ डज एंटनी रिएक्ट टू द न्यूज ऑफ फुलवियाज डेथ? जब उसे पता लगता है कि उसकी वाइफ फुलविया की डेथ हो गई, तो वो कैसे रिएक्ट करता है? ए, ही रिग्रेट हैविंग विश्ड हर डैड एंड विश्ड हर बैक, B, he wept uncontrollably, C, he chastised Cleopatra for keeping him from his true family, and D, the news does not faze him. So right answer is A, he regret having wished her dead and wished her back. कि मतलब उसके मरने की कामना करता है और अब उसे वापस पाना चाहता है। So this was my last question. Thank you for watching. Please like and subscribe for more videos.